Now I'm talking about biotechnology principles and processes. Biotechnology can be defined as the use of microorganisms, plant or animal cells or their component to produce product and process useful to humans. तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें कि हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जा सकता है या किसी प्लांट या एनिमल को, जिससे कि ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, कोई ड्रग एंजाइम हार्मोन्स बनाए जा सकें लार्ज लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, और जिससे हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज कर सकें. द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल एर्की इन 1919. Now I'm talking about principle of biotechnology. Principle of biotechnology are based on the concept of two techniques. Number one, genetic engineering. Genetic engineering is the technique to alter the chemistry of genetic material, that is DNA or RNA, to introduce these into another organism to change the phenotype of the host organism. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसकी वजह से डीएनए या आरएनए में हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन कर सकते हैं, कोई जीन ऐड कर सकते हैं या डिफेक्ट जीन डिलीट कर सकते हैं, और जिससे एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है होस्ट की उसका फिनोटाइप या मॉर्फोलॉजी को चेंज किया जा सकता है. सेकेंड टेक्निक इज स्टरलाइजेशन टेक्निक. Adequate maintenance of sterile condition to support growth of only the desired microbes or eukaryotic cells in large quantity for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, etc. तो स्टेराइजेशन टेक्निक के थ्रू हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, वैक्सीन्स का और एंजाइम का. So we can say biotechnology deals with technique of using live organism or enzyme for organisms to produce product and processes useful to humans. Today, biotechnology refers to those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale. The European Federation of Biotechnology, that is EFB, defined the biotechnology as the integration of natural science and organism, cell, parts thereof and molecular analogues for products and services. So now I'm talking about principle of biotechnology. Two core techniques that enable birth of modern biotechnology include genetic engineering and bioprocess engineering. Genetic engineering is a technique to alter the chemistry of genetic material, that is DNA and RNA, and to introduce these into host organism and thus change the phenotype of host organism. The technique of genetic engineering include creation of recombinant DNA, मतलब नए combination से बना हुआ DNA, use of gene cloning and gene transfer. It allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. Second is bioprocess engineering. Maintenance of sterile, that is microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantity for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, etc. So, genetic engineering or recombinant DNA technology is also called as genetic modification. It is the manipulation of an organism genome. It can also be defined as the process of inserting new genetic information into existing cell in order to modify a specific organism for the purpose of changing its characteristics. तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम अपना मनपसंद डीएनए का पीस लेते हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल, हमें अगर इंसुलिन के जीन की कई फोटोकॉपीज तैयार करनी है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इंसुलिन हार्मोन बनाना है, तो हम उस डीएनए के पीस को ले सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से. फॉर एग्जांपल, हॉर्स के पैंक्रियास से ले सकते हैं, उसका काफी टैली करता है ह्यूमन से, और वहां से उस पीस ऑफ डीएनए को लेकर फिर उसको किसी वेक्टर में, यानी कि किसी बैक्टीरियल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे ईस्ट में
यूनिसेलुलर फंगस में यूज करके उसको, तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसमें इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया जब कल्चर करते हैं उससे बहुत सारी उसकी कॉपीज बनती है, प्रोजेनिस बनती है रिप्रोडक्शन में, तो उस डीएनए के पीस की भी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो मेन डीएनए था उसी में अपना मनपसंद डिजायर डीएनए को जो है ऐड कर दिया है। जिस तरीके से कि अगर हम जब नोट्स, अगर कोई टीचर देता है नोट्स प्रिंटेड और उसमें वो कुछ एडिशन करता है, तो अगर आप उसकी फोटोकॉपी करवाएंगे तो उसकी हर फोटो स्टेट में वो एडिशन जो उसने अपने पेन से एक्स्ट्रा किया है वो हर फोटो स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी वेक्टर को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल को हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम कॉपीज बनाने वाले हैं, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो एक बैक्टीरियल सेल के पास एक खुद का क्रोमोसोम तो होता ही है जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनाता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। तो वो उसके तो किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे बहुत काम का है। हम उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में यानी प्लाज्मिड में अपना मनपसंद डिजायर डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको उसमें चिपका देते हैं और फिर उस बैक्टीरियल सेल को रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे उसकी जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन बनती हैं, नेक्स्ट डॉटर सेल्स, उन सब में उसकी कॉपी हो जाती है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमको पहले अलग करना पड़ेगा, डीएनए के पीसेस को सेपरेट करना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म से जिसका डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमारा है उसको हमें लेना है। तो क्या स्टेप्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी। The sequence of step in recombinant DNA technologies are: number 1, the culture of cell which require DNA is obtained by culture technique and DNA is isolated. The specific restriction enzyme is selected for a specific bacterium. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यूज होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डीएनए में अंदर की तरफ कहीं कट लगाता है और स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और जबकि एक्सोन्यूक्लियस जो है वो बाहर की तरफ कट लगाता है। क्योंकि जो प्लाज्मिड है जिसमें अपना हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है उसके डीएनए के पीस को, तो उसमें ऐड करने के लिए पहले हमें तो कट लगाना पड़ेगा प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड में कट लगाने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोपोआइसोमरेज। फिर हमें अपना जो फ्रेगमेंट है जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए वाला पोर्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, उसको उसमें चिपकाना पड़ेगा। तो हम लाइगेज एंजाइम को यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जिससे कि उसे चिपकाया जा सके प्लाज्मिड में। फिर उस बैक्टीरियल सेल को हम कल्चर करवा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप है द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सिलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक बैक्टीरियम। नेक्स्ट है बाय द यूज ऑफ एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, a DNA fragment with the desired gene is isolated from the donor cells. The plasmid are isolated from E. coli, that is Escherichia coli, and are cleaved by specific restriction enzyme. तो उसको क्लीव मतलब स्प्लिट करना, कट करना। एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। Next step, the isolated gene is then inserted into the plasmid with the help of enzyme ligase. तो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पीस है उसको प्लाज्मिड में चिपका सकते हैं। This technique of joining DNA fragment of one organism with DNA molecule of other is called gene splicing. Next step, the hybrid DNA thus formed is called recombinant DNA और प्लाज्मिड। अब ये नए कॉम्बिनेशन से बना हुआ डीएनए है, प्लाज्मिड है, क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी चिपका दिया गया है। These are used as vector to carry the foreign or desired gene into bacterium like E. coli. With the multiplication of bacteria, that is E. coli, many copies of desired gene are formed. The process by which a huge number of copies of desired DNA genes are produced is called gene cloning. These clones of the recombinant bacteria then manufacture the protein for which the gene is introduced. Now I am talking about various tools used in rDNA technology. There are three types of biological tools that are used in the formation of recombinant DNA. These are, for example, enzymes, cloning vectors. Now I am talking about enzymes. There are four kinds of enzyme involved in genetic engineering are restriction enzyme, DNA ligase, lyases, synthetases. Now I am talking about restriction enzyme or restriction endonuclease.
The first restriction endonuclease, that is HIND1, was isolated by Smith, Wilcox and Kelly in 1968. These are the most important tools in genetic engineering and are often referred to as biological or molecular scissors. The restriction enzyme cut the DNA by cleavage at a specific site in either blunt end style or sticky end style. तो बहुत सारे टूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जैसे एंजाइम्स यूज होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर यूज होते हैं। एंजाइम्स भी 4 तरीके के यूज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज जो चिपकाने के काम में आता है, लाइएजेस, सिंथेटेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं इनको। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था, आइसोलेट किया गया था, सेपरेट किया गया था, वो HIND1 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। ये सारे इन्हें बायोलॉजिकल या